آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے روح القدس کے بارے میں ہے۔ روح القدس کیا ہے؟ روح القدس پاک تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے، جو آج اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں اعمال کی کتاب، اس کا 19واں باب اور اس کی دوسری آیت سے 6 آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، ان سے کہا، کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ اس نے کہا، پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا، یوحنا کا بپتسمہ۔ پالوس نے کہا، یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا۔ جب پالوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے، اور وہ سب تخمیناً 12 آدمی تھے۔ تو میرے عزیزو، اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس جب ان شاگردوں سے بات ہوئی، یوحنا کے شاگردوں سے، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد پوچھ رہے ہیں روح القدس کے بارے میں، تو انہوں نے کہا، ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ نازل ہوا ہے یا نہیں۔ پھر ان سے کہا گیا کہ آپ نے بپتسمہ کس کا لیا ہے؟ تو جب یہ سوال کیا گیا یوحنا کے شاگردوں سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یوحنا کا بپتسمہ لیا ہے۔ تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یسوع کا بپتسمہ لو تو پھر روح القدس پاؤ گے۔ یسوع کا بپتسمہ لیا، پھر لکھا ہے کہ انہوں نے پالوس نے ان پر ہاتھ رکھے اور پھر انہوں نے روح القدس پایا۔ میرے عزیزو، جب ہم روح القدس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جب روح القدس ہماری زندگی میں ہوتا ہے یا ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم روح القدس سے معمور ہیں، تو پھر کس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم روح القدس سے معمور ہیں؟ یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب، تو اس میں لکھا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں سے 15ویں آیت تک یوں لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ میرے عزیزو، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سچائی کی راہ دکھائے گا۔ جس کی زندگی میں روح القدس نازل ہو چکا ہے، وہ روح سے معمور ہو چکا ہے، تو اس کی سب سے بڑی پہچان سچائی ہمیں نظر آنی چاہیے۔ سچائی، اگر اس کی زندگی میں سچائی کبھی کبھی نظر آتی ہے تو پھر ہم جان سکتے ہیں کہ وہ روح القدس سے معمور نہیں ہے۔ اگر وہ روح القدس سے معمور ہے تو سچائی کیا ہے؟ جب کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں سچائی کیا ہے، یوحنا کی انجیل میں لکھا گیا ہے کہ جب یہودیوں سے یہ بات کہی خداوند یسوع مسیح نے کہ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، تو انہوں نے کیا کہا کہ جواب دیا؟ انہوں نے شاید اس بات پہ مائنڈ کیا کہ ہم کو غلام ہے۔ لکھا ہے کہ انہوں نے جواب دیا یسوع مسیح کو کہ ہم تو کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ تو وہاں پہ یسوع مسیح پھر سچائی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ غلام سدا تک گھر میں نہیں رہتا، جو بھی نوکر ہے 50 سال تک بھی رہے، آخر جب وہ چلنے پھرنے سے بھی
आजिज़ हो जाता है तो उसको घर छोड़ आते हैं कि अब ये नौकरी के लायक नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत ये मिसाल दी कि नौकर हमेशा तक घर में नहीं रहता, लेकिन बेटा हमेशा तक घर में रहता है। तो जब ये बात उनको कही गई यहूदियों से, तो उनकी समझ में फिर बात नहीं आई। फिर उन्होंने कहा कि तुम गुनाह के गुलाम हो, तुम गुनाह के गुलाम हो, तो गुनाह से तुम्हें सच्चाई आज़ाद कर सकती है जब उसको जान जाओगे। तो सच्चाई क्या थी? खुदावंद यीशु मसीह है। लिखा है कि बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पे अब खुदावंद के कलाम में जब हम देखते हैं कि सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जो हमारे लोग हैं, हमारे भाई रूहुल कुद्दस से मामूर हैं, वो भी इस बात को जानने की कोशिश करें कि पाकिस्तान में जब हम सरहद की बात करते हैं तो वहाँ पे ज़ल्ज़ला आया। मुशर्रफ के दौर में ज़ल्ज़ला आया और बड़ा ख़तरनाक ज़ल्ज़ला आया, और किसी ने उसके बारे में पहले आगाही नहीं दी। अगर इस मुल्क में रूहुल कुद्दस से मामूर लोग थे तो फिर पहले आगाही देनी चाहिए थी, क्योंकि कलाम हमें बता रहा है कि वो आने वाली खबरें देगा। तो वहाँ पे किसी ने मुशर्रफ साहब को नहीं बताया कि मुशर्रफ साहब कल तो यहाँ पे ज़ल्ज़ला आ रहा है, तो आप लोगों को यहाँ से निकाल दें। अगर रूहुल कुद्दस से मामूर होते तो मेरे अजीज़ों पहले जाके उसको ज़रूर बताते, लेकिन शायद ये बात तो दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन जब ज़ल्ज़ला आ गया तो फिर शायद बहुत सारे लोगों ने ये बयान दिए होंगे, नहीं जी हमें तो पहले ही पता था, हमें तो पहले ही पता था, लेकिन बताया नहीं। मेरे अजीज़ों, ये बात हमें कलाम मुक़द्दस सिखाता है। यहाँ पे आपके सामने मैंने पढ़ा है कि वो तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, आने वाली खबरें देगा। तो अगर ये खबर नहीं हम तक पहुँची, ये खबर हम तक नहीं पहुँची, तो फिर आज हमें इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। जब पौलुस रसूल की हम बात देखते हैं, वो कहता है कि इन्होंने जब तक यीशु का बपतिस्मा नहीं लोगे तो तुम्हें रूहुल कुद्दस नहीं मिलेगा। तो यीशु का बपतिस्मा हमें किस तरह से लेना है, बपतिस्मे की भी बात हम करेंगे। बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा किस तरह से यीशु का लेना है, जब तक हम वो नहीं लेंगे तो फिर हम रूहुल कुद्दस हासिल नहीं कर सकते। कलाम मुक़द्दस में जब हम इसी में ही पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील में ही 14वां बाब और उसकी 14 से 17 आयत पढ़ते हैं, तो लिखा है कि रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। 14वां बाब है उसका, मैं आपके सामने ज़रूर पढ़ूंगा। 14वें बाब की 14वीं आयत से लिखा है, अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। दूसरा मददगार जब हम यहाँ पे देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने जाते वक्त अपने शागिर्दों को ये बात कही कि मैं जाता हूँ और तुम्हें मददगार दिए जाता हूँ। वो रूहुल कुद्दस की बात यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं, और यहाँ पे कहता है कि अपने बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा और अब तक वो तुम्हारे साथ रहेगा। आगे लिखा है, ये नहीं रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। हम इसके बारे में बखूबी जानते हैं सॉरी जो हमारे खादमीन हैं या हमारे कलीसियाई लोग हैं जो इल्म रखते हैं बाइबल का, वो जानते हैं कि पतरस के पास कुछ लोग गए, उन्होंने कहा जी हम रूहुल कुद्दस हासिल करना चाहते हैं तो हमसे रुपए ले लो। रुपए से रूहुल कुद्दस वो लेना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। रूहुल कुद्दस ऐसे उनको नहीं मिल सकता था। मेरे जो इस तरह से हम जब पौलुस रसूल की बात देखते हैं, पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को जब ख़त लिखता है तो वहाँ पे भी वो एक बड़ा खूबसूरत बयान करता है। कहता है कि रूह सब बातें बल्कि तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। सब बातें बल्कि तय की बातें, तय का मतलब जो छुपी हुई बातें जो हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वही बात आइंदा की खबरें। हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, हमें नहीं पता हमारे मुल्क में ज़ल्ज़ला आने वाला है, सुनामी आने वाला है, किसी को नहीं पता। बेशक वो मौसमियात वाले कह देते हैं,
लेकिन ऐसा होता नहीं, बहुत कम होता है ऐसा। लेकिन जो खुदा की तरफ से खबर जिसको मिलती है, जो रूह कुदस से मामूर है, उसको खबर पहले मिल जाती है, क्योंकि ये कलाम बयान कर रहा है। जब सफनिया की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अपने लोगों के ऊपर पहले आश्कारा कर देता है, कुछ भी करने से पहले। हम जानते हैं कि जब सदूम और अमूरा में खुदा तूफ़ान भरपा करने वाला था, आग लगाने वाला था, तो खुदा ने इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम, मैं इस मुल्क को तबाह करना चाहता हूँ, क्योंकि इस मुल्क में बड़ी बदी और बड़ी बदकारी और बड़ा काम यहाँ पे ख़राब हो रहा है। तो जब इब्राहिम से ये बात कही गई तो इब्राहिम ने कहा, क्या है खुदा, ऐसा ना कर, क्योंकि हो सकता है तेरे मानने वाले इसमें हों, वो भी साथ मर जाएंगे। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कितनी बार इब्राहिम नीचे 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 आता गया, और आखिर में उसने कहा, क्या ये खुदा, अगर इतने निकल आएँ तो 5 लोग भी उस मुल्क में से ना निकले। कितने लोग निकले? 4 लोग निकले। हज़रत लूत, उसकी बीवी और 2 बेटियां, जो खुदा के मानने वाले या खुदा के रूह से मामूर थे, वो 4 लोग वहाँ पे निकले। और हम जानते हैं कि खुदा ने उस मुल्क के साथ क्या किया। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं ये तय की बातें खुदा पहले अपने लोगों पर जाहिर करता है। इब्राहिम से खुदा ने कहा कि मैं इस मुल्क को तबाह करने वाला हूँ, करना चाहता हूँ, लेकिन उसने कहा कि खुदा इसको तबाह ना करो। लेकिन जब उसने देखा कि ऐसा नहीं है तो फिर उसने कहा अब तबाह इसको कर दो। तो यूएल जब हम पढ़ते हैं, यूएल की किताब में भी 2 बाब की 27वीं आयत से 29वीं आयत तक, तो वहाँ पे भी लिखा है कि तब तुम जानोगे कि मैं इसराइल के दरमियान हूँ। खुदा वहाँ पे वादा करता है, दावा करता है कि तुम मुझे जानोगे और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। अगर उसके लोग रूह कुदस से मामूर हैं, रूह कुदस को जानते हैं, उनकी ज़िंदगी में वो मददगार काम करता है, तो वो फिर ज़िंदगी में शर्मिंदा ना होंगे। मेरे अजीज़ों, एक बात और ज़रूर मैं जाते जाते कहता जाऊँगा, ज़रूर आपके सामने गोश गुजार करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि लिखा है कि कलाम मुक़द्दस में जब हम पढ़ते तो झूठ बोलने वाली भी रूह है। हमें इस बात के बारे में भी जानने की ज़रूरत है। हो सकता है वो कहता है मैं रूह कुदस से मामूर हूँ, रूह कुदस से नहीं, बल्कि वो रूह से, झूठ बोलने वाली रूह से भी बाज़ लोग मामूर होते हैं। ये कलाम मुक़द्दस से जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है। सलातीन की किताब जब पढ़ते हैं उसका 22वां बाब और 21-22 आयत पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि एक रूह निकल कर, रूह बदरूह का जिक्र नहीं, एक रूह निकल कर खुदा के सामने आ गई। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे नबियों में मुंह में जाके झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी। तो ऐसा ही हुआ, खुदा ने उसको इजाज़त दे दी, क्योंकि वो नबी खुदा के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। तो फिर लिखा है कि उनमें जाके झूठ बोलने वाली रूह ने अपना काम किया। मेरे अजीज़ों, रूह कुदस के बारे में जब हम जानना चाहते हैं, बड़ा ख़ास ये पैगाम है हमारे लिए, हमारे व्यूवर्स जितने भी हैं उनको जानने की ज़रूरत है कि अगर हम रूह कुदस से मामूर हैं तो फिर ये मामूरी हमें कैसे पता चलेगी, लोगों को कैसे पता चलेगा। जो लोग रूह कुदस से मामूर हैं वो ज़रूर आने वाले वक्त के बारे में आपको बताएंगे और जानेंगे, और हमें भी जानने का मौका मिलेगा। जो लोग नहीं जानते वो भी समझेंगे कि हाँ जी, आज इन्होंने पेशन गोई कर दी, कल ऐसा हो जाएगा। मेरे जीजो, हमें रूह कुदस के बारे में मुकम्मल तौर पर ये जानने की ज़रूरत है। फिर हम हिजकियेल की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पे खादमों के बारे में खुदा फरमाता है कि शायद मेरे खादम अभी तक वो समझे नहीं, मेरे कलाम को माने नहीं। तो हमें आज इन बातों पे गौर करने की ज़रूरत है कि अगर हम रूह कुदस से मामूर हैं तो फिर रूह कुदस हमारी ज़िंदगी में किस तरह से काम करता है और लोग कैसे जानेंगे कि ये रूह कुदस से मामूर है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।